distinguished alumni to this special alumni meet. It is a day of reunion, reflection, and celebration of our cherished memories. Memories spent together in the college for 4 years or nearly 3.5 years. It is wonderful to see many familiar and yet many unfamiliar faces, but familiar names returning to the place that once shaped your dreams and laid the foundation of your success. BC is immensely proud of each one of you, your journey, achievements, and experience. Be a testimony to the values and education you received at BC Bhagalpur. You are not just former students. All of you are not just former students. You are forever a part of BC family. Your presence today strengthens the bond between the past and the present. Let me quickly tell about BC Bhagalpur because I happen to be one of the most senior teachers at BC Bhagalpur, joined in the 1990s. If you look back, well, I would tell you with modest pride that I happen to be one of the most senior teachers in entire Bihar in all of the 38 engineering colleges now. When I joined this college, it was undivided Bihar, sir. There were only 3 engineering colleges: DIT Sindri, MIT Muzaffarpur, and BC Bhagalpur. At that time, only 3 branches of engineering were there: civil, electrical, and mechanical. I could remember that only 120 students they were admitted in the college. Each class was having 40 students. It was a small little college. Slowly and gradually, the college gathered strength. It marched from strength to strength. And in 2000, if I remember it all right, then government introduced, in fact, 2 other branches of engineering, that was electronics, communication, and computer science. Slowly and gradually, the number of intake at the behest, at the request, and order of AICTE, All India Council for Technical Education, number of students increased manifold. Now we are having 1,300 students at Bhagalpur College of Engineering at one go. Some MTech programs also got started in the college in electronics, communication, engineering, computer science, and recently in mechanical engineering and electrical engineering. So, this is how, in fact, Bhagalpur College of Engineering built itself from the nascent phase of 1960. As I recall, in 1991, this college had a band of excellent teachers. Each teacher was an institution in himself or himself that, in fact, many of the alumni sitting here who passed out during that time, they would vouch for. Slowly and gradually, there was a time in 2000, there was a big gap, big void. Teachers were not there, guest teachers were appointed, teachers on ad hoc basis, on contract basis they were appointed. So, it saw a bad time. But with the effort, with the vision of Bihar government, to which this college is controlled, that is Department of Science, Technology and Technical Education, 7,000 or 8,000 students, they were appointed by Public Service Commission. That is a big achievement of Department of Science, Technology and Technical Education. और 7 निश्चय प्रोग्राम जो हुआ चीफ मिनिस्टर साहब का, उसमें 38 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई. Each district is having one engineering college with its own infrastructure, hostel facilities and everything. अभी मैं बात कर रहा था डॉक्टर संदीप तिवारी से, मैं पूछा शेख पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने टीचर्स हैं,
Now that Sheikhupura Engineering College, which came into existence very recently, it boasts of nearly 40 teachers, regular teachers. तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बिहार गवर्नमेंट का। एक समय में ऐसा था कि जब यहाँ के बच्चे महाराष्ट्र जाते थे, यूपी जाते थे, मध्य प्रदेश जाते थे, साउथ जाते थे, भटकते रहते थे, कहीं पे पढ़ाई करते थे। लेकिन आज के दिन में 38 इंजीनियरिंग और ये मैं बताऊं ये वर्ल्ड में बिहार ही ऐसा इंजीनियरिंग का क्षेत्र है जहाँ पे इंजीनियरिंग की शिक्षा हर एक विद्यार्थी को मुफ्त में मिलता है। ये बिहार गवर्नमेंट का अचीवमेंट है। और मैं ये बताऊं 2010 में वर्ल्ड बैंक संपोषित प्रोग्राम के तहत दैट इज टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसमें अर्लियर सिर्फ बिहार में 2 ही कॉलेज को टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत चुना गया है। उसमें भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और उस टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें काफी काम किए गए, फंड वगैरह मिला। यहाँ के टीचर्स वगैरह को एक्सपोजर मिला, IITs जाने का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाने का। और उसके बाद पुनः 5 साल का प्रोग्राम था 2015 में बिहार के 7 इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में शामिल किया। और भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पता नहीं कितना उससे बेनिफिट ले सके, लेकिन मैं ये ऑनेस्ट राइट के साथ कह सकता हूँ कि वो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम को यहाँ के प्रोग्राम को वहाँ के जो आदर्श थे उसको स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिया। आज के दिनों में सर जब इंजीनियरिंग के छात्र यहाँ पे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे उनका चयन होता है, उसके साथ कंपीट करना पड़ता है। तो आज का डिमांड है, इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम कि यहाँ पे जितने कोर्सेज हैं वो NABE से एक्रेडिटेड होना चाहिए। वो एक मानक है, इट इज द पैरामीटर ऑन विच द एक्सेलेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिपेंड्स। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्राचार्य, यहाँ के जितने भी शिक्षक हैं, यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और अनुनाई जो आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि NBE का जो एक्रेडिटेशन हो हर एक कोर्सेज का, जिसके बाद यहाँ के छात्रों का चयन सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा बल्कि पूरे विश्व स्तर पर होगा। उसमें आप लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। ये मेरा आह्वान है जितने भी अनुनाई यहाँ पे बैठे हुए। और मैं ये बता दूं कि आज के दिन में जो अलुमनाई यहाँ के पास आउट है 64 से जो अनवरत चलते आ रहा है हर एक बार पास, आज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, NTPC, NHPC, DHED और जितने और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, you will find the students of Bhagalpur College of Engineering now they are occupying the places of pride at all the different organizations. मैं कभी बॉम्बे जाता हूँ सर, कभी बैंगलोर जाता हूँ, कभी दिल्ली जाता हूँ और जब उन लोगों से मिलता हूँ जो क्लास में मैं पढ़ाता था, देखता था और 10 साल के बाद 20 साल के बाद उनको देखता हूँ, तो दैट इज ए मेटामॉर्फोसिस, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आई डू नॉट बिलीव माई ईयर्स, आई डोंट बिलीव माई आईज कि यही स्कूल को मैं पढ़ाता था और वो आज संघर्ष कर करके अपनी मेहनत से, लगन से आज उस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। मैं ये बताऊं सर कि यहाँ की एक स्टूडेंट है जिसको जो 1994 में पास की, मैं उसका नाम जानता हूँ, वो है बर्नाली घोष। और इंग्लैंड में जो टॉप साइंटिस्ट, लेडी साइंटिस्ट है, उसमें उसका नाम अंकित है, सिस्मोलॉजिस्ट। आप देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, मनोज सर बैठे हुए हैं, यहीं से पास आउट किए हुए हैं, डिविजनल कमिश्नर। अभी हाल के दिनों में बातचीत हो रही थी भोपाल में अभय सिंह, he happens to be the IG
of एक तो अमरिंदर सर हैं जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में यहाँ के छात्र कार्य कर रहे हैं साइंटिस्ट। और खास तौर से मैं ये बताऊं कि भाभा एटॉमिक रिसर्च इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैं बार बार कहता हूं कि जब मैं गया था भाभा एटॉमिक रिसर्च में तो वहां पे उसका नाम इतने तादाद में यहाँ के छात्र भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कि बार का नाम जो है निकनेम हो गया भागलपुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इतने सारे वहाँ पे अभी हाल के दिनों में आपको बड़ी खुशी की बात है कि मैं बात कर रहा था श्री अशोक यादव, जो सूर्य कुमार यादव जो क्रिकेट में खेल रहे हैं, उनके पिता हैं अशोक यादव जी, और उनसे वो बात में कार्य कर रहे हैं। वो भी यहाँ पे आने की इच्छा जाहिर की, किसी कारण से नहीं आ सके। वो सूर्य कुमार यादव के पिता अशोक यादव यहीं के प्रोडक्ट हैं कैप्टन है, और उन्होंने अपना मैसेज भी किया है प्रिंसिपल को कि मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, मैं फिर यहाँ पे आऊंगा। तो ये सब जो है, अब एक चीज मैं ये बताऊं कि भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इसका जो जर्नी है, इट इज फ्रॉट विद ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, अप्स एंड डाउन्स, जॉयज एंड सॉरो, सक्सेस एंड फेल्योर। लेकिन इन तमाम के बावजूद ये दिस कॉलेज स्टैंड्स इरेक्ट। सब चीज का इन्होंने विथस्टैंड किया है, इस बर्डन को, इस ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस को, इस अपहिल जर्नी को, समटाइम्स डाउनहिल जर्नी को इसने बर्दाश्त किया है। और आज जब आप इस प्रशाल में खड़े हुए बैठे हुए हैं तो देख रहे हैं कि इट इज स्पीकिंग इट्स ओन ग्लोरियस ट्रेडिशन। इसमें आप लोग, हर एक लोग, यहाँ के जितने भी अलुमनाई हैं who are now scattered among 100 cities, they are telling the glorious history of the past. ये बहुत फख्र की बात है। मैं ये बताऊं कि जब मैं यहाँ के सक्सेस, यहाँ के फेल्योर की बात करता हूं तो कभी यहाँ पे हताशा भी हुई है, कभी भी यहाँ पे फेल्योर भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ जो प्रिंसिपल्स खासतौर से उन्होंने फ्रंट से डील किया है। और आज के दिनों में पिछले 5 महीने में डॉक्टर टुगनायक जो कि नागपुर से है, यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में अपना जिम्मेदारी दे रहे हैं। और मैं ये देखता हूँ कि इस भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से वापस लाने में इतना बड़ा योगदान दिया है कि मैं इसे हर छोटी छोटी चीज आज मॉर्निंग में मैं जब यहाँ पे आया इस प्रशांत में, तो जो साफ करने का था, ये देखिए फ्रंट कैसे डील करते, फूल कहाँ पे रखा जाएगा, ये कारपेट साफ हुआ कि नहीं, जब कोई नहीं साफ करते तो खुद करने लगते साफ। भाई ऐसे प्रिंसिपल जब जिसको मिला है भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसकी तरक्की होना तो निश्चित रूप से बनता है और बनेगा। मैं ये चाहता हूं कि आप जितने भी अलुमनाई, आप अच्छे जगह पे आए हुए हैं। इसके बाद इनॉग्रेशन सेरेमनी के बाद आप लोग हमारे बच्चों से मिलेंगे, उनका मार्ग प्रशस्त आप लोग करें, उनको बताएं, क्योंकि यू हैपन टू बी आवर एम्बेसडर्स, आवर हाई कमिश्नर्स। आपकी ख्याति सभी जगह है। एक स्टूडेंट से मिला, वो जापान, यहाँ के स्टूडेंट है, मैं दिल्ली में था, वो जापान में कार्य करता था। तो उसने एक छोटा सा वाक्यांश है, उन्होंने बताया कि जब मैं वहां पे गया जापान में, हमारे साथ आईआईटी के और सब देश के जो छात्र थे, तो शुरू में बड़ा ट्रेपिडेशन था, डर था कि मैं कैसे उन लोगों के साथ काम करूंगा। तो उसने बताया कि जो फाउंडेशन हमको भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला था, जैसे डॉक्टर एस.के. अग्रवाल, प्रोफेसर आर.एन. दास, प्रोफेसर के मुखर्जी, इलेक्ट्रिकल में डॉक्टर जे मिश्रा, अपने टावरिंग पर्सनैलिटी, प्रोफेसर पी.आर. सिंह, सिविल इंजीनियरिंग, उन लोगों का नाम दिया, क्योंकि उन लोगों ने जो फाउंडेशन दिया था, उसके कारण वो मेरा रेपुटेशन वो दूर हुआ। और जब बाद में मेरा अप्रेजल हुआ तो मुझे आईआईटी में जो छात्र थे उनके साथ जो काम कर रहा था, उससे बढ़िया मुझे अप्रेजल मिला और मेरा प्रमोशन। ये भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की टीम। तो मैं सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, क्योंकि डीएम साहब के प्रति मेरा एक स्पेशल ग्रेटिट्यूड ये है कि जब कभी भी भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा
निवेदन किया जाता है कि किसी फंक्शन में यहाँ आए तो उनके प्रति मैं सादर समर्पित हूँ कि वो झिझकते नहीं हैं, तुरंत यहाँ पे आते हैं, अपने बीजी क्षण में भी यहाँ पे आकर के हम लोग को अपना आशीर्वाद, अपना गुरु विशेष देते हैं। उनके लिए मैं विशेष रूप से मैं हमेशा कहता हूँ कि 5 बार 6 बार 7 बार मैं मिल चुका हूँ डीएम साहब से। मैं डीएम साहब के समय भी कह रहा हूँ, देयर इज नो शुगर कोटेड वर्ड्स। कोई तारीफ की ऐसी मैं पुल नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन मैं जो यंग आईएएस ऑफिसर्स को देखता हूँ, जो यंग ऑफिसर्स को देखता हूँ, जो आज के दिन में ज्वाइन करके कितना एंथुसियाज्म रहता है। और सर तो अब कितने जगह डीएम रह चुके हैं, 3-4 जगह, अब तो शायद सेक्रेटरी भी होंगे। मैं चाहूंगा कि कुछ दिनों में साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के सचिव बन करके आए। उत्साह है उसी यंग जो आज के दिन में आईएएस ऑफिसर ज्वाइन करता है, वो कॉम्प्लेसेंट कभी भी नहीं हुए। ही हैज नेवर बीन कॉम्प्लेसेंट। ये बहुत तारीफ करने की बात है और सीखने की बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि मुझ जैसे बूढ़े आदमी जो कि अब रिटायर कुछ दिन में करूंगा, कॉम्प्लेयर सब चलता है, होगा, एक वो नहीं आ रहा है, तो मैं भी उनसे सीखता हूं, वो इंस्पायर्ड होगा। तो इन सब चंद बातों से मैं चाहूंगा कि जो आगे जो डिग्नेटरीज हैं उनसे भी कुछ बात सुनूं। बीसी भागलपुर इज नॉट ओनली a structure made of brick and mortar and cement. It is not merely the classroom and bakeries. It is a whole ecosystem of learning comprising teachers, students, the folklore and stories about the students and teachers. All of you, because the legacy which this Bhagalpuri training is carrying is really at par with IIT and NIT system. And any college who have very strong backup of their alumni, no one can stop their growth. The college will certainly move forward and achieve good success. And I heard so many things related to this college from Shashank Sekhar sir. Really, it's amazing for me. And Honorable Divisional Commissioners Manoj sir is also here. Big round of applause for all alumni who are here. And I am also thankful to Dr. Raju Tugnath ji for inviting me in this occasion. If I will discuss about old days, बचपन की तरफ अगर हम चले, हमारे गेम अलग हुआ करते थे। अगर ध्यान से देखें, वो गेम आज की डेट में सोसाइटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कंचे खेलना, गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना, हमारी हॉबीज ये होती थी। आज हॉबीज ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही सोसाइटी में। अगर थोड़ा सा देखें, आज ये कैमरे का युग आ गया है, सैटेलाइट कैमरा आ गया है। हमारे टाइम में एक सोसाइटी कैमरा होता था। आप सिटी के किसी कोने में चले जाइए, कोई ना कोई आपको देख लेता था और आपकी वो इंफॉर्मेशन घर आ जाती थी। जब तक आप घर पहुंचते थे, डंडा लेके पिताजी इंतजार करते थे। तो हम लोगों का जो शरीर मजबूत हुआ, वो हमारे गार्जियन और हमारे जो नेबर्स होते थे उनके उसमें रहा। सोसाइटी में ईच एंड एवरीवन वाज रिस्पॉन्सिबल, किसी का भी बच्चा ना बिगड़े। अब ये सिनेरियो चेंज हो गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए, मेरा बच्चा अच्छा बन जाए, ये भावना सबके मन में होनी चाहिए। लेकिन दूसरे का बच्चा बिगड़ जाए तो ज्यादा खुशी होगी। ये एक हेल्थी सोसाइटी का माइंडसेट नहीं है। अगर हम थोड़ा सा इसे देखें, सोसाइटी में जो चेंज आया है, हमारी परवरिश जो हुई थी वो जॉइंट फैमिली में हुई थी। अब माइक्रो फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया है। दादा दादी जो है वो गेस्ट नजर आते हैं, नाना नानी गेस्ट नजर आते हैं। पहले हम लोग समर वेकेशन में नाना नानी के यहाँ जरूर जाते थे। जो संस्कार हमें घर से मिले वो तो मिले ही, माँ की साइड के जो संस्कार थे वो हमें मामा मामी नाना नानी के थ्रू मिल जाते थे। और हमारी एक अच्छी ट्रेनिंग होती थी जो शुरू से ही स्टार्ट हो जाती थी। 4 बजे अगर आप नहीं उठे तो आपको कैसे उठाया जाएगा, नो वन नोज। आज की डेट में बच्चों के कंफर्ट्स पे हम ध्यान देते हैं। उस समय हमारा जो कंफर्ट था वो मुझे अपना तो याद है, आई थिंक आप लोगों के साथ भी वही होगा। सुबह 4 बजे अगर नहीं उठे तो सुबह ही पिटाई, बेटा सुबह पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। हमारे टाइम में
पान की शॉप वाला कॉमिक्स रखता था, नंदन, चंपक और चाचा चौधरी, पिंकी, इस तरीके की कॉमिक्स होती थी। वो 10, 20, 25 पैसे में 24 घंटे के लिए किराए पे देता था। जब हम लोग लेने जाते थे सोचते थे जल्दी जल्दी एक मैगजीन पढ़ ले, 25 पैसे बचा लेंगे। तब तक देखते थे पीछे से कोई गुप्ता अंकल जा रहे हैं, वो कान पकड़ के वहीं से खींच के ला रहे हैं। आपका बच्चा पान शॉप पे खड़ा था और पिताजी ये नहीं सुन रहे कि कॉमिक्स या क्यों खड़ा क्यों था, तड़ा उनके सामने मारना शुरू। तो ले दे के जो ये सिनेरियो चेंज हुआ है, हम बिना फ्रेंड्स के रह नहीं पाते थे और आज हमारा फ्रेंड मोबाइल हो गया। पहले हम 1 घंटा अकेले नहीं बिता पाते थे, अब मोबाइल के साथ हम घंटों अकेले रह सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो चेंज हो रहा है इसका बट नेचुरल है। देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स रिलेटेड टू दिस पॉजिटिव चेंजेस और नेगेटिव चेंजेस। ये तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, लेकिन द काइंड ऑफ माइंडसेट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर सोसाइटी इज ग्रोइंग माइंडसेट। So if I will discuss about problems, if I would like to quote few names. I think you have heard name of Ultima Sinha. When Ultima Sinha was in crisis, उसका एक पैर काट दिया जाता है, गाजियाबाद में गुंडे धक्का दे देते हैं, उसका पैर कट जाता है, वो बेहोश होती है हॉस्पिटल में। जो होश आता है डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा पैर कट गया है। वो एथलीट थी तो 2 दिन तो रोती रहती है, बाद में वो अपने को अंदर से ही अपने से बात करती है, सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड। फिर वो कोप अप करके सोचती है कि अगर ईश्वर ने मुझे बचाया है तो बड़े गोल के लिए बचाया होगा। तो वो डिसाइड करती है बेड पे लेटे लेटे कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। तो लोग कहते हैं दिमाग खराब हो गया है, 2 पैर थे तब तो जाने की सोची नहीं, अब 1.5 पैर रह गया, कैसे जाएंगे। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और वो देखिए एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। दूसरा नाम दशरथ मांझी का कोट करना चाहूंगा, जिनकी वाइफ एक लंबे रास्ते की वजह से हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से एक्सपायर कर गई। उन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने सोसाइटी के बारे में सोच के जो घटना मेरे साथ घटित हुई है किसी के साथ घटित ना हो, और उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया। तीसरा माइंडसेट मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने गूगल पे सर्च करिएगा, द पर्सन हु डोंट हैव लेग्स एंड हैंड्स। वो स्विमिंग कर रहा है, फिशिंग कर रहा है, गोल्फ खेल रहा है, वो वर्ल्ड की 3 कंपनियों का मालिक है, हिक नाम है उसका। तो आप देखेंगे कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो इतने सक्सेसफुल पर्सन है। ही इज द बेस्ट मोटिवेटर। आप उसके स्ट्रगल देखिए, जिसके हाथ पैर नहीं है, वो तो पड़ा रहता बेड पे, लेकिन वो कैसे खुश रह रहा है और इस सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरा तो यही मानना है कि जैसे अभी बात हो रही थी कि केवल 3 कॉलेज थे, VIT सिलरी, MIT मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जितने भी एलुमनाई यहाँ आए हैं, आई नो अबाउट ऑल ऑफ यू, उस समय अलग ही स्टैंडर्ड होता था। तो यहाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस मोमेंट, बिकॉज 3 कॉलेज के एलुमनाई को रेस्ट ऑफ द 38 इंस्टीट्यूट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड कर दी है। Because if you will focus on भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज only, then what about other college? तो एक छोटा सा वो लेके ना, कि सब लोग कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार स्ट्रेंथ लिमिटेड फील हुई, मैं और मेरा शहर थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ गई, मैं और मेरा स्टेट और स्ट्रेंथ बढ़ गई। एक लाइन अगर हम बोलते वासुदेव कुटुंबकम, अचानक देखे पूरा विश्व जो हमारा परिवार है, तो हमें कितनी पावर फील होगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं एज अ मेंटर, वो अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारे सामने जो चैलेंजेस हैं वो बताना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चैलेंजेस को आई एम क्वाइट श्योर वी विल गेट स्ट्रेंथ फ्रॉम योर साइड टू एड्रेस दीज एग्जिस्टिंग इशू। फर्स्ट वन इज रिलेटेड विद डिसिप्लिन एंड करेक्ट माइंडसेट। एक हमारे टाइम में कुछ भी चेंज करने को कहा जाता था तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, वी आर बाउंड टू चेंज, वी आर बाउंड टू मॉडिफाई आवर हैबिट्स। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज है। तो वो कैसे हम एड्रेस करेंगे, एक ये है। दूसरा ये, नो वन इज विलिंग टू स्ट्रेच देयर पोटेंशियल, बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें, आप भी अभी बहुत से गुरुजनों का नाम लिया था, यहाँ बहुत सारे ऐसे एलुमनाई होंगे जो सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देंगे, अगर वो नहीं होते तो मेरा ब्राइट फ्यूचर नहीं होता। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे सोसाइटी में रिटर्न करें, वो बहुत आवश्यक है। और
प्लेसमेंट एक मेजर प्रॉब्लम बन के निकल के आ रही है, बिकॉज आवर सिलेबस इज नॉट वेल अलाइंड विद ग्लोबल नीड्स। तो जब ये जो गैप है एकेडमिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस करना है, उसमें भी हमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ मिलके। अभी बीच में लंच के टाइम में आप लोगों से पर्सनली इंटरेक्ट होगा, और सर्टेनली अगेन आई एम बेगिंग टू गेट योर सपोर्ट फॉर 38 इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो वो कैसे हो, ये बहुत आवश्यक है। हम लोग आज जो भी हैं, जिस मुकाम पे भी हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू आवर मेंटर्स। नेक्स्ट जो वैक्यूम सोसाइटी में आया है, उनके कोई मेंटर्स नहीं है। मैं अपनी यंग फैकल्टी मेंबर्स को भी हमेशा मोटिवेट करता हूं। अगर हमारे यंग मोटिवेटर, हम यंग मेंटर्स, कोई भी है उसके मेंटर्स होते हैं, तो वो उसको करेक्शन टाइम टू टाइम करते रहते हैं और गाइडेंस मिलता रहता है। तो प्लीज एक्ट एज अ मेंटर फॉर दीज 32 इंस्टीट्यूट। थैंक यू, वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जैसा कि इंट्रोड्यूस किया गया, मैं टीचर पास आउट काफी लेट मंचासी प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल फैकल्टी मेंबर्स, दिस कॉलेज, स्पेशली हमारे बैच के 3-4 दिन दिख रहे हैं, विनोद पांडे, रवि, शशि, सो नाइस, एंड ऑल माय colleagues and friends, सबों का स्वागत है। ये मौका पुराने दिनों को याद करने के साथ साथ अपने कुछ लर्निंग शेयर करने का भी है, क्योंकि ये सर्वविदित है, हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया का है। तो उस हिसाब से वर्ल्ड के लेबर के प्रॉब्लम को और टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो स्किल, एजुकेशन और जो तत्परता होती है वो प्रोड्यूस करना इंडिया का मेन उद्देश्य है। और जो हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें 5 सबसे अच्छे स्टेट तो एक स्टेट बिहार है, और उस बिहार में वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बीसी भागलपुर है। तो इस बीसी भागलपुर का एक विशेष दायित्व है कि जो वर्ल्ड डिमांड लेबर की है, वो भी स्किल्ड लेबर की, बीट इंजीनियर, डॉक्टर तो बीसी नहीं पैदा करेंगे, बट इंजीनियर्स और जो ट्रेंड साइंटिस्ट हैं, उस फील्ड में इस कॉलेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। हमारे पूर्व के वक्ता ने कई किस्म की बात रखी, माइंडसेट पर भी चर्चा किए, और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और बच्चों के प्रति का जो पढ़ाई लिखाई के प्रति जो दिलचस्पी में कमी है, उसकी भी बात उन्होंने की। एक चीज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जज्बा हो तो अचीव किया जा सकता है, और वो जज्बा पैदा करने का काम पेरेंट्स और पीयर के बाद अगर कोई है तो वो है दैट इज इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है या फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका सबसे बड़ा रोल रहता है। तो मिला जुलाकर पीयर और इंस्टीट्यूशन, ये दोनों का सबसे बड़ा रोल है। हम काफी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, अभी वर्ल्ड की स्थिति देख रहे हैं, कितना कटथ्रोट कंपटीशन है इकोनॉमिक फील्ड में। तो अगर हम में वो सक्षमता रहती है कि टेक्निकली हम बहुत साउंड हैं, वी कैन गिव समथिंग टू द सोसाइटी, टू द वर्ल्ड, तो हमारी पूछ सब जगह है। और चूंकि हाई डेमोग्राफिक डिपेंडेंट हमारा है, तो हम सप्लाई करने वाले साइड में खड़े हैं, हमारा राष्ट्र सप्लायर एंड पे खड़ा है, और दुनिया हमारी ओर देख रही है। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हम जस्ट अपने
जो अभी हमारे कॉलेज में पढ़ रहे छात्र हैं, मे बी 2 बैच 23 बैच और अब उनसे, और जो अलुमनी अभी एम्प्लॉयमेंट का और इसके तलाश में है उनके लिए भी है कि वो स्किल हम आपस अपने अंदर पैदा करें और वो जज्बा रखें कि हम राष्ट्र को कुछ देंगे, समाज को कुछ हम देंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। हमने माल न्यूट्रिशन के क्षेत्र में और बच्चों के क्षेत्र में कुछ काम किए हैं, बहुत काम तो नहीं कर सकते, कुछ काम किए हैं, तो बड़ा संतोष मिलता है कि आप कुछ दे पा रहे हैं। हमारी पढ़ाई, हमारी ट्रेनिंग माल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इस सब क्षेत्र की नहीं रही, लेकिन जज्बा रहा है कि हम जो डिप्रेस्ड और जो वंचित वर्ग है, जो जिसकी मुंह में आवाज कम है, उसके लिए कुछ काम करें। तो वो जज्बा ने हमें आगे बढ़ाया और उस फील्ड में काफी लंबा समय तक काम करने का हमें मौका भी मिला है। तो हम ये आपके साथ जस्ट शेयर करना ये चाहते हैं कि आपके अंदर अगर जज्बा है तो आप अचीव भी करेंगे और वो उस फील्ड में आप कंट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। तो हम आपका स्वागत भी करते हैं और साथ में ये इंकरेज करते हैं कि आप अंदर में राष्ट्र समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति उस जज्बा को रखें कि हमें इनका मान सम्मान और नाम ऊंचा करना है और समाज को कंट्रीब्यूट करना है। सोसाइटी, यहाँ पर का जो सोसाइटी है और यहाँ पर का जो इन्वायरमेंट है पढ़ने का है, हम लोग के टाइम में तो बहुत ही बढ़िया रहा है। और इत्तेफाक से शशांक शेखर जी ने जिन 5 प्रोफेसर का नाम लिया, PR सिंह हो, RN सिंह हो, जय मिश्रा हो, इन सबों के हम लोग के ही टाइम के वो 5 प्रोफेसर हैं। हम लोग 5 से इंटरेक्शन रहा है। PR सिंह सर तो उनके वो हमारे गाइड भी थे प्रोजेक्ट वर्क में, लो कॉस्ट प्रूफिंग हम लोग का प्रोजेक्ट था। तो पढ़ाई का वातावरण पहले भी था और हम समझते हैं अभी भी होगा। तो अपने पढ़ाई में अव्वल रहने, अपने उसमें अचीवमेंट के साथ साथ समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो आपका दायित्व है, उसको नहीं भूलना है। और सरकार भी आपके साथ खड़ी है, सरकार भी आपके लिए बहुत खर्च कर रही है। आपको अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करना है समाज को। DM साहब ने बहुत अच्छी बात की। वैसे हम लोग जैसे एक 2 बैच वाले ग्रुप बनाए हैं, वैसे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का एक ग्रुप है BC बेंगलोर। तो बेंगलोर में कोई भी व्यक्ति जैसे अपना कोई रिक्वायरमेंट है, कहीं वैकेंसी निकली है, चाहे कहीं इस टाइप का स्किल अपग्रेडेशन का कार्यक्रम होने वाला है, तो ग्रुप में डालते हैं और उनको वो सहयोग मिल जाता है। तो अगर डैशबोर्ड बनाते हैं और उसमें डालते हैं तो जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं कंट्रीब्यूट भी करेंगे उसमें, और उनको दिशा निर्देश भी मिलेगा। कहीं पर कुछ वैकेंसी निकली है, चाहे कहीं पर कोई स्कोप है, कहीं भी अपॉर्चुनिटी का विंडो खुला है, तो वहाँ भी वो इंटरेक्ट कर वहाँ पर सपोर्ट पा सकते हैं और आगे। सो दैट्स नाइस आइडिया। थोड़े somebody from the college should take initiative। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच। शरीराय गुणमण्डिताय गुणब्रह्माय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भानुचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, मेरे मित्र डॉक्टर संदीप तिवारी सर, डॉक्टर पाठक सर और इस कॉलेज के भीष्माचार्य भीष्म पितामह डॉक्टर शशांक शेखर सर, सभी विभाग के प्रमुख, मेरे फैकल्टी बंधु और आप सभी, इस कॉलेज के धरोहर, आपका सभी का स्वागत है। किसी भी परिवार, किसी भी एक इंस्टीट्यूशन की अगर आपको जानना है, कुछ पहचानना है, तो वो उनकी धरोहर होती है, उनके बुजुर्ग हुआ करते हैं। हम लोग जिस समाज से निकले हैं वो समाज सनातन धर्म कहते हैं, या फिर हम लोग हिंदू जो सभ्यता है हमारी जॉइंट फैमिली की सभ्यता है। बड़ों को मान दिया जाता है, तभी जाकर आने वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी का उद्धार होता है। आज भी हम पूरे भारतवर्ष या पूरे वर्ल्ड में गया जी आते ही आते हैं, क्योंकि हमारे पितरों का हमें शांति करना है। जीवित रहो, जीवित रहे तब तक उनकी पूजा करते हैं। जब जीवित नहीं है, जिस भी हम ये नहीं मानते कि आत्मा अमर है, ये हमें कहा गया है, तो उसी हिसाब से हमें मानते, शरीर रहे ना रहे लेकिन उनका सानिध्य हमारे साथ में है। तो हम प्रत्यक्ष शरीर के साथ में जितने भी हमारे गुरुजन हैं, भले मैं प्रिंसिपल हूँ इस कॉलेज का, लेकिन आपसे छोटा हूँ बहुत सारे लोगों से, और जो हमारे नए नए एल्यूमनी हैं उनको भी मैं स्वागत करता हूँ और गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो आयोजन करना है, इसलिए करना है, क्या करना है ये सभी को पता है, और कुछ हुआ भी ऐसे ही। एल्यूमनी मीट करना है, कुछ एल्यूमनी आया था करीबन 1 महीने पहले। मैं चाहता था कि इंटरेक्शन हो। आपको पता है BC भागलपुर का नाम क्या हुआ था कुछ दिनों पहले, और अब क्या हमें करना है। उसके लिए सबसे पहली बात होती है कि बच्चे अगर भाई बहन आपस में झगड़ते हैं तो दादाजी या दादी या मौसी या मौसा उनको कहते हैं बेटा इनको संभालो। इसीलिए हमने शुरुआत की कि जिस हिसाब से मुझे आराम से चल रही थी जिंदगी, मुझे धकेला गया। एक किस्सा आपको सभी को पता होगा कि बहुत बाढ़ आई हुई थी, ऐसी बाढ़ थी कि सब लोग देखने पहुंच गए वहां पर। तो किसी ने तो एक व्यक्ति को धक्का मार दिया, तैराकी हुई तो बहुत मुश्किल था। कहाँ से है? धक्का मार दिया तो एक जो बच्चा गिर गया था उसके पहले, तो उसने उसको बचा दिया। उसी टाइप से मेरी परिस्थिति हुई। आज से करीबन 5 महीने पूर्व यहाँ के DM जो साहब थे बहुत प्रसन्न से बात हुई थी। DM सर और SP सर करीबन हर रोज, हमारे पत्रकार बंधु भी यहाँ पर है, उन्हें पता है क्या परिस्थिति थी। उस हिसाब से मुझे यहाँ भेजा गया, मेरी पोस्टिंग हुई। DM सर का खास रिक्वेस्ट हुआ कि किसी भी हालत में यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो बच्चों के साथ मिलजुल के रहे, फैकल्टी के साथ मिलजुल के रहे, और BC भागलपुर का नाम जो है वो उसका नाम तक लाने की आप लोग कोशिश करें, हम लोग कोशिश करें। BC भागलपुर में सर्विस करना मैं अपना अहोभाग्य समझता हूँ। सबसे पहली बात है पूरे भारतवर्ष में एक ही साधना होती है कि गंगा जी नहा ले, तमन्ना। यहाँ तो हर साल साक्षात गंगा जी आती है। तो आखिर में जब व्यक्ति के प्राण उड़ते हैं तो लास्ट में गंगा जी की 2 बूंदे डाला करते हैं। ऐसे जगह पर हमें काम करने का, जहाँ तो नहाते भी गंगा जी से, पीते भी है, खाते जीते हैं, सांस भी लेते हैं गंगा जी के सानिध्य। तो गंगा मैया की जय बोल के हम लोग संबोधन शुरुआत करते हैं। एल्यूमनी मीट ऑर्गेनाइज करना था। हमने कहा कि हमारे जितने भी एल्यूमनी हैं, एल्यूमनी कहें एक वर्ड ठीक नहीं लगता, हम लोग कहेंगे कि हमारे परिवार के सदस्य, जहां पर भी हमारे परिवार के सदस्य रहते हो, जैसे मैं भी जॉइंट फैमिली से आता हूँ, हमारे परिवार के 5 भाई 2 बहनें, फिर उनके बच्चे, उनकी बहुएं, उनके रिश्तेदार,
जब भी शादी का मौका पड़ता था तो करीबन एक स्टेज जो होता था 40 बाय 30 का पूरे के पूरे हमारे परिवार के सदस्य होते थे। तो मैं उस जॉइंट फैमिली में काम करने के लिए आया हूँ, उसका पार्ट हूँ कि यहाँ पर तो 11,000 के आसपास एलुमनी है, वो भी बहुत बड़े बड़े पोजीशन पे, उनके सामने कहीं ना कहीं एक भले शादी ना हो क्योंकि टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन एक ऐसा मौका दिया जाए शादी जैसा जिसको हम पुराने पलों को जिया जाए। बहुत तकलीफ का काम होता है इनवाइट करना, छुट्टी लेना। और मैं खुद सर्विस कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि त्योहार बार मेरे से यहीं पे है, चाहे होली रहे, छठ रहे, दिवाली रहे या नवरात्र रहे। तो आप लोग छुट्टी डाल के आए हो, इसके लिए मैं आपको सही में प्रणाम बहुत कठिन है, चाहे आप सरकारी में रहो चाहे प्राइवेट में रहो, तो उसके लिए आपका शत आभार और आपको शत नमन करना। हमारा ये प्लान है कि हम लोग हर 6 महीने में एलुमनी मीट लें, हर बैच के हिसाब से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी जो बैच गई है वहां से शुरुआत करते हुए 60 तक, हर 6 महीने में एक बैच के हिसाब से। तो जितनी बैचेस हमारी हुई है अभी तक, तो उन बैचेस में 40 वर्ष हो गए हैं, तो 40 वर्ष में जितनी भी बैचेस होंगी उनका ग्रुप बनाएंगे हम लोग, जो डीएम सर ने कहा भी, तो वो बैच को बुलाएंगे और एक मेंटर बनाएंगे। आज जितने भी है हम चाहते कि एक मेंटर बन जाए, वो ऑर्गेनाइज करें। तो वो हिसाब से बहुत सारे लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो डायरेक्टली वर्चुअली कांटेक्ट करें, आपस में जिए। इस बार हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है कि सही में अपने फैमिली के साथ आए। हमने सभी को इनवाइट किया था फैमिली के साथ, कुछ लोग आए फैमिली के साथ, तो फैमिली को भी मैं वंदन करना चाहता हूँ कि हमारा पति कैसा था, हमारे पापा क्या क्या किया करते थे, बदमाश तो नहीं थे, तो वो हम आपको जीना है। ज्यादा भाषणबाजी तो नहीं चलेगी। इसके बाद हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन करें, आपकी जो आने वाली जनरेशन है इसी भागलपुर में, उनके साथ डिस्कस करें, आप अपना दिल खोलें, क्योंकि वैसे हम लोग बहुत डिले चल रहा है, ज्यादा यहाँ समय नहीं हम लोग ये करेंगे। इसके बाद का प्रोग्राम बता दें तो आप डिपार्टमेंट जाओगे, डिपार्टमेंट अलग अटैचमेंट होता है, हमने बेंचेस डेस्क एज इट इज रखे हैं, सिर्फ उसका रिनोवेशन किया है। वही पल याद कीजिए, टीचर जैसे ही मुड़ा ब्लैक बोर्ड की तरफ और कंपटीशन होता था, मैंने नोट्स लिखी, मैंने असाइनमेंट लिखी, अब वो उसको नहीं पता चलना चाहिए मैंने कुछ किया, उसके बारे में टीचर को नहीं पता होना चाहिए। हम मानते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वो पल जिएंगे आप 2 बजे के बाद, लंच होने के बाद में। लंच के बाद में हम लोग वहां पर आपको बच्चों से इंटरेक्शन करना, बच्चे बहुत होना, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो होती है, क्योंकि मेरे पिताजी से मैं शायद थोड़ा होता, मेरा बच्चा उससे भी, उसका बच्चा उससे भी ज्यादा होता। आने वाली जनरेशन जो, आपने क्या क्या सोचा था, जैसे मैं अपने बारे में सोचता था कि इंजीनियरिंग में हमें धक्का मार दिया है, तो आगे क्या जॉब है क्या, लेकिन जब इस पड़ाव में आया तब पता लगा कि हमको हिम्मत करना है, हमें थोड़ा सा ये मोटिवेशन चाहिए, जाना तो है ही, क्योंकि ये जो समाज है, ये आप जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतने इंजीनियरिंग कॉलेज से इतने इंजीनियर निकल रहे हैं, भैया डेवलपमेंट भी तो उतना ही हो रहा है, उतना डेवलपमेंट हो रहा है तो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। और मैं थोड़ा सा एक सर्वे रिपोर्ट बता देता हूँ कि सबसे पहले जो इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी थी वो तमिलनाडु में हुआ था, चिदम्बरम साहब ने इनिशिएटिव ली थी। आज तमिलनाडु टॉप पोस्ट में आता है पूरे भारतवर्ष में। हम रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, स्किल्ड पर्सन तैयार करेंगे, तो अपने आप कंपनियां आएगी, जैसे चुंबक को ये तरफ आती है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आने वाले 2 या 3 वर्षों में हम भी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर नोएडा साइड ले लो, तो उससे आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में पोटेंशियल स्किल्ड पर्सन तैयार हो रहे हैं 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी गवर्नमेंट से। और एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि बच्चे यहाँ पर हैं हम लोगों के, कि फ्री में एजुकेशन नहीं है। हमारे आपका टैक्स का पैसा एक स्टूडेंट पे खर्चा होता है 10 लाख के आसपास।
भले हम लोग बच्चों से 10 रुपए लेते हैं फीस नॉमिनल, लेकिन हमारा ही पैसा जो सरकार के द्वारा मिलता है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग कराने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं। तो पीढ़ी बैठी है सामने, उन्होंने सोचना चाहिए कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन कहीं से ही समाज का ही पैसा आपके ऊपर खर्चा हो रहा है, उसका योगदान आपको देना ही देना। दूसरी बात, पहला प्लान ये है कि 6-6 महीने में हम लोग एल्यूमिनी मीट लेंगे। 136 आउट ऑफ 11,000 उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन हो गया, ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन बैच वाइज आए, उस पल को याद करें, क्योंकि भले डिपार्टमेंट अलग अलग हो, हम लोग एक एल्यूमिनी एसोसिएशन टाइप का बनाया हुआ है। आप अपना स्मारक छोड़ के जाइए, क्या करना है, ये पौधा ही लगा के जाइए। ये बैच ने पौधा लगा, इस बैच ने ये किया है। हम चाहते कि हम रहे ना रहे, जैसे ताजमहल रहा, ताजमहल आज भी है, उसी टाइप से हर एक बैच कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे, अपनी निशानी छोड़े। वैसे भी हम लोगों का कॉलेज जो है उसको तोड़ा गया, फिर भी ट्रिपल बना। कुछ और जगह हमने पावर स्टेशन को दी, कुछ जगह हमने यहाँ पर बिटको को दी है। ये भी इतना बड़ा कॉलेज है, तो हम चाहते हैं कि आपका कुछ न कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ रहे, कि आपका नाम हमेशा आपके आज बच्चे लाए हो, उनके बच्चे देखें कि मेरे पिता का नाम है यहाँ पर, वो इस कॉलेज की धरोहर थे। दूसरा और एक है आपसे विनती कि पीछे कुछ मैंने अभी कहते रुक गया था कि कुछ एल्यूमिनी आए थे 1-8 महीने पहले, उनको कल्चरल प्रोग्राम हो, उनको बहुत पसंद आया बच्चों का। उसी दिन इनॉग्रेशन था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब बच्चे हैं, बच्चों को लगता है कि 1 लाख रुपए दे रहा है कोई, तो अभी फोन करने के लिए बच्चों को कहा गया, तो उन्होंने सीधा कहा कि सर आप डोनेशन दीजिए, हमारा ये क्लब, हमारा वो क्लब है करके। तो अगर किसी को इस टाइप का फोन गया होगा तो बच्चे समझ उनको माफ कर दीजिए, उनके लिए मैं क्षमा चाहूँ। अगर बच्चे रिपोर्ट आई है मेरे पास, इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ओपन में सभी के सामने कह रहा हूँ, बच्चे हैं, बच्चों ने कॉलेज, देखिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ा हूँ उसका करिश्मा जिंदगी भर नहीं उतार सकता, क्योंकि इतने बड़े लर्नेड ऑडियंस के सामने मुझे खड़ा किया उस कॉलेज ने। ये बहुत बड़ी बात है, उस कॉलेज को तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। उसी टाइप से अगर आपको लगता है तो हम लोग 6-6 महीने में मिलेंगे, एक बैच वाइज मिलेंगे। और 2-3 आपसे मैं चाहता हूँ, सबसे पहली बात की मार्केट, जैसे बच्चे घबरा जाते हैं, आप भी घबराते होंगे उस वक्त। फर्स्ट ईयर आया, एंजॉयमेंट में गुजर गया, सेकंड ईयर आया, सीनियर लोग परेशान कर रहे हैं, सब्जेक्ट को बैक लग गए, थर्ड ईयर आया, फिर टेंशन आ गया कि फाइनल कैसा जॉब होगा, इंटर्नशिप करना। उस वक्त इंटर्नशिप अगर होती नहीं, जब भी हमारे चाचा मामा कोई इंस्टीट्यूट में काम करते थे, तो 2 महीने वहां पर काम करते थे। मैं चाहता हूं कि एक्चुअल मार्केट सिनेरियो क्या है, वर्चुअल आप यहाँ नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आप लोग एक बैच पे डिसाइड कर लो कि मैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए नए जो बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन दूं। और कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, देखो 140 करोड़ आपका भारत है, अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने से कुछ जाती ही जाती है। आपको लगे कि नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी, सर ने बहुत अच्छी बात की कि क्यों बीसी भागलपुर, दूसरे कॉलेज के लिए भी अपॉर्चुनिटी। इस बार मैंने वैसे ही किया, हम लोग जितने भी प्लेसमेंट कंपनियां हमारे यहाँ पर आई, हमने आसपास के जितने भी कॉलेजेस थे सबको बुलाया। कुछ कह रहे थे कि सर अपना डाउन हो जाएगा, अपने बच्चे कम होंगे, कुछ बच्चों ने भी कहा मैंने नहीं, बांटने से बढ़ता है। आज हम ज्यादा संख्या में बच्चे प्लेसमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उतने ही कंपनी हमारे यहाँ पर ज्यादा है। आपको लगे कोई भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग चाहते हैं कि एक मेंटर टाइप का बना दें, बच्चों को आपके साथ कांटेक्ट में रहे, और ऐसे जो ग्रुप रहेंगे उसके एक टीचर रहेगा, वो मॉनिटर करते रहेंगे, जैसे टीचर गार्जियन स्कीम होती है। और तीसरी एक बात है कि कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट हो, गवर्नमेंट एड हो, या फिर आपके कंपनी की तरफ से ऐसा फंड आता है, CSR फंड, वो अगर कॉलेज के लिए मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा जो आता है, आप देखते हो कि कहां से हमने कैसे काम किया है अभी 4-5 महीनों में, और उसके पहले
CSR फंड के बारे में बहुत कुछ जानकारी भी नहीं होती। बिना पैसे के तो होता नहीं, बिना मैन जानने पावर से के नहीं है। होता नहीं है। तो गवर्नमेंट के फंड जो आते हैं वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे सबको राज्यों को संभालना है। तो अगर कोई भी आपके कंपनी का कोई फंड होगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज के आने वाले, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके भलाई के लिए अगर यूटिलाइज हो सकता है तो आपका स्वागत। चौथा, आप इतना कष्ट करके यहाँ आए, आपके जो सुझाव रहेंगे वो हमारे लिए बहुत बहुत मूल्यवान रहेंगे। आप आए यहाँ पर, हमने आपस में संवाद किया, संवाद करके बस चले गए, कुछ यादें पुराने मित्र से मिले नहीं। इसका उद्देश्य जो होता है, मराठी में कहते हैं कि ज्ञानेश्वरी जिन्होंने पढ़ा हुआ है आखिर में फसायदान मत कहते। कोई भी प्रोग्राम होने के बाद में आखिर में क्या निष्कर्ष निकला उसका, तो फसायदान में मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, उसका कुछ न कुछ आप एक सोच लीजिए, हमें ये कुछ तो भी करना है अपने आने वाली पीढ़ी। क्योंकि दादा अपने पोते के लिए नहीं करेगा, पिता अपने बेटे के लिए नहीं करेगा, बाहर वालों से क्या उम्मीद करेगा। इसी कॉलेज के लिए नहीं, बाकी जो भी 38 कॉलेज है उनके लिए भी आपका कोई कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो करिए। आज जब मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया तो महाराष्ट्र में जितने भी मेरे कंपनी का नेटवर्क था पूरे ने पूरा यूटिलाइज किया और हम लोगों का 90-80% प्लेसमेंट था, क्योंकि एक संबंध बन जाते हैं। आप लोगों का भी नेटवर्क हो, ये नहीं कह रहे हम लोग कि सभी बच्चों को प्लेस करवा दीजिए, प्लेसमेंट तो है एक कंसर्न, लेकिन हम नहीं चाहते कि 100% किसी की गुलामी करें हमारे बच्चे। आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप की आइडिया होगी, कोई भी आपको लगता है कि आपके कंपनी में लगता है कि ये आपके साथ में होना चाहिए, तो हमारे यहाँ के बच्चे टॉप मोस्ट बच्चे, क्योंकि आप टॉप मोस्ट हो इसलिए आने वाली जनरेशन भी जो है वो टॉप मोस्ट है। सभी आप लोगों के लिए तालियां तो बजनी चाहिए। बच्चे नहीं है, NIT IIT के बाद में डायरेक्ट जो एडमिशन होती है टॉप मोस्ट जो होते हैं वो BC भागलपुर में होते हैं, ये मैंने देख लिया है। हमारे फैकल्टी कम जोर शोर से काम कर रही थी एलुमनी मीट के लिए, ये बच्चे जो है 2 महीने से कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, ये डिजाइन कर रहे हैं, वो डिजाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं। कितनी खुशी होती, मेरे दादाजी आ रहे हैं, मेरे पिता, मेरे चाचा आ रहे हैं, मेरे ये आ रहे हैं, मेरे मानो का स्वागत कैसे करूं। उनके लिए तो खाक बनता है हम लोगों का कुछ न कुछ करने, मांगना नहीं कहेंगे, लेकिन एक गार्जियन के नाते या कस्टोडियन के नाते मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई भी आपको लगे कि छोटा सा भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आप करना चाहें, यानी कि मैटर में नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको लगे कि ये मेरा कॉलेज है जिसने मुझे आज इतने बड़े पोजीशन पे लाया है, तो उसका कुछ न कुछ होना चाहिए, तो इसकी फलश्रुति होगी। तो इसके बाद का प्रोग्राम है कि आप लोगों का लंच होगा, लंच के बाद में डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन होगा और बच्चे बहुत होशियार हैं, तो आपसे कठिन कठिन सवाल भी पूछेंगे, कुछ पर्सनल सवाल भी पूछेंगे, तो प्रिपेयर रहिए और सही में जिए। आज से 20 साल 15 साल 10 साल पहले जो आपने 4 साल यहाँ बिताए, अमूल्य क्षण, उस वक्त आप जैन जी थे, एक्स में हो आप लोग, लेकिन जिए उसको। याद आता है कि मैं कैसे बैठता था, कब 1 रुपया भी का 1 पैसा भी बहुत कीमती हुआ करता था। नहीं सर, हम अकेले हैं। याद है सभी को 1 पैसा आना हुआ करता था, वो चौकोनी है, ये बिल्कुल गोल 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 जिए उसको। छोटे छोटे दिवाली सर ने बहुत चीजें याद दिलाई है। हम शाम को कल्चरल प्रोग्राम रख रहे हैं यहाँ पर अगर किसी का लगता है कि मैं गाना गाऊं, गाइए, नहीं मौका, दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, डांस करना है, इतनी हो गई है सर, आपको बड़े इसके पास ले जाना गलत गलत। इतना मैं फोर्स करूंगा आप लोगों को कि गाना तो गाइए गाइए, हर कोई क्या गाता है बाथरूम में, करता है, चांस नहीं मिला होगा, तब वो स्क्रीनिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस है ये। इसके बाद में जैसे फिर डिनर हो जाएगा हम लोगों का कल्चरल प्रोग्राम के बाद में, तो हम लोग जहाँ ये जो ग्राउंड है पहले खेत हुआ करते थे, बहुत बड़ा ग्राउंड बना दिया, उस ग्राउंड में हम लोग चेयर लगा देंगे और बोन फायर टाइप का हम लोग गेट टुगेदर टाइप का आपस में बात करेंगे।
वही बात कीजिए कि आज क्या पोजीशन में, वो पोजीशन नहीं देखी जाती। आज भी मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ तो वही गाली से शुरू होता है मेरा काम। पंडा वही होना चाहिए, वही तो आदमी ना, वही तो दोस्त है। अभी तो मतलब ही दोस्त है, पहले के क्या थे दोस्त? आधी चॉकलेट हो, ऑरेंज की एक चॉकलेट हार्ट टाइप की, किडनी टाइप की मिलती थी, शायद याद होगा। याद है। छुट्टी ना हो इसलिए अपने शर्ट से तोड़ के दिया करते थे, वही तो सच्चे दोस्त थे। यही आपके साथ में इनके आग्रह पर आपको छुट्टी ना मिलती हुई भी आप यहाँ पर आए हैं, तो इनके साथ आप समय व्यतीत कीजिए। रात में जितने देर तक आपको गप्पे या फिर कुछ कूदना है, भागना है, करिए, रात तक रहेगा। कल सुबह हमने आपके नाश्ता होने के बाद में ग्राउंड इवेंट्स, कोई पुराने दिन याद कीजिए, बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, कबड्डी खेलना चाहते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, या फिर ऐसे दौड़ना है या बॉल मारना, जो भी आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है, कंपटीशन के रूप में हम लोग उसका ऑर्गेनाइज करें, तो उसमें करिए। तब आप अकेले थे, अब आप फैमिली के साथ में हैं, फैमिली को भी जॉइंट पार्टनर बना लीजिए। और ये हो गया प्रोग्राम शेड्यूल। दूसरा एक है, सिर्फ अटेंडेंस के लिए मत आए, जिए इसको। हमने शुरुआत की है और ये शुरुआत जो है वो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। आज हमारे बबलेश सर है, बबलेश सर आइए, ये हमारे यंग डायनामिक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, आपको शायद तो सभी के सामने, वैसे हमने पहले से प्लान करके रखा था कि हर 6 महीने में एल्यूमनी मीट होगी, नहीं इतने ग्रैंड लेवल पे होगी, लेकिन गेट टुगेदर तो होगा ही। आएंगे हम लोग, मिलेंगे आप पुराने, और वैसे भी मीट हो ना हो, आपका कॉलेज है, हम तो किराएदार कुछ दिनों के लिए आए हैं, सरकारी नौकर बन के आए और कुछ दिनों के बाद चले जाएंगे। तो आपको इस कॉलेज की धरोहर को मेंटेन रखना है, तो आपको आना ही पड़ेगा। आपके आने वाली जनरेशन बिगड़े नहीं, वहां मार्ग पे ना जाए, तो आपको ही मार्गदर्शन करना है। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है, आप आते रहिए। जरूरी नहीं कि एल्यूमनी मीट में ही आए, कभी भी आइए, आपका स्वागत है। और कहते हैं ना, आंखों पे पल के बिछाकर आपका स्वागत करते हैं उसी टाइप का। और आप लोग आए उसके लिए और एक बार आपका सभी का आभार। थैंक यू वेरी मच। ठीक। Which create testimony to the glorious mission of BC Bhagalpur since its inception in 1960. तो ऐसे हमारे प्राचार्य महोदय जो अहर्निश, जिनका एक क्षण एक पल इस संस्थान के लिए गुजर रहा है, राष्ट्र के लिए गुजर रहा है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं और इनसे बहुत आशा करते हैं, शुभकामना करते हैं और इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें इस कॉलेज पर बहुत ही गर्व है और नए प्राचार्य सुनने में आया है कि बहुत इफेक्टिव डायनामिक आदमी हैं और उनके इसमें
कॉलेज बहुत तरक्की करेगा, ये हमारी आशा है। जब सर ने एडमिशन ली थी तब इस आए भी नहीं थे सर। 3 साल और 9 महीने में हम लोग वापस चले गए थे। तो ये इस इंस्टीट्यूशन का ये था कि 4 साल के अंदर भी हम लोग निकल गए थे। और सबसे अच्छी बात जो लगी, लगभग हम लोग 36 साल के बाद इस कैंपस में आए हैं। बीच में आए थे, लेकिन 1-2 चीज़ बहुत मार्केबल लगा। सबसे पहली बात है कि जो अभी इनिशिएशन हुआ है, हमारे प्रिंसिपल साहब महाराष्ट्र, सर हम भी महाराष्ट्र में लगातार 1 साल रहे हैं। सर हम लोग थे घाटकोपर और किसी कारण से रहे थे सर। और आपने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है और महाराष्ट्र और यहाँ की नीति, सर आप गेस्ट नहीं है हमारे लिए सर। और सबसे पहली बात ये है कि इस कैंपस में आपने जो किया है वो दिखाई पड़ रहा है सर। और ये चीज मैं तो दूसरी बात आपने कहा कि आपदा में भी आपने जो अवसर निकाला है सर, गंगा मैया आपके नजदीक आ रहे हैं। इससे बड़े वो तो हमारे यहाँ जो थे कवि जो थे जो कहते थे कि कद सुखसार पावन तू तीरी, गंगा मैया हमारे यहाँ आते हैं, इसको अवसर के रूप में देखें। और कितनी सौभाग्य की बात है कि माँ हमारे पास में आ रही है। सर एक वाक्य मैं और भी कहना चाहता हूँ, बहुत मुझे याद है, शायद आप लोग हंसिएगा क्योंकि हंसिए कि एक हमारे यहाँ डीपी यादव एक 4th ग्रेड हुआ करता था। और बात थोड़ा देखिए कितना मार्केबल है, वो पढ़ा लिखा कम ही था, कभी तो वो चपरासी था। और उनको हर एक इंग्लिश राइटर की किताब या उसका नाम उनके दुकान पर होता है। सीनियर कहते थे टिपिया जाओ 3 नंबर या 4 नंबर से फलाने किताब ले आओ, बस हो गया। वो जाता था रेसलिंग रेडियो या जो भी वो ले आता था। उसने एक बात कहा, बड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आज 36 साल के बाद ही उसको याद कर रहा हूँ। उसने कहा कि सर मैं अपने गया कुछ अपने दोस्तों से या हम लोगों से कुछ पैसा लिया और घर गया, महिलाएं खास करके ध्यान दीजिएगा। और वो घर जाकर के बोला कि हेलो माय डार्लिंग, हम लोग सिनेमा जाना चाहते हैं, चलो चाहते हैं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि ये है डार्लिंग कहे छोटी ठीक से, लेकिन माय नहीं कहो। मैं इसको प्रासंगिक इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए आपदा में अवसर, उसने क्या कहा और हमने क्या सुना। और यहाँ इतने लोग हैं और ये शुरुआत है, बहुत दिनों के बाद ये शुरुआत हुई है और हम लोग भी उसके लिए दोषी हैं। मैं कहता हूँ कि किसी ने अगर प्रिंसिपल साहब ने इस झंडे को खड़ा किया है तो मजबूती हम देंगे, हम सींचेंगे। आप फंडिंग की बात कर रहे हैं सर, अगर हाथ उठ जाए तो फिर ये झंडा झुकना नहीं चाहिए। डीसीएम की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से मैं अपने जूनियर को कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसे माहौल में आज आए हैं जहाँ आपके साथ प्रतिभा भी है, हिम्मत भी है और आपका उमंग साथ रहेगा। डीसीएम यहाँ से काफी ज्यादा धन्यवाद। हाँ बहुत I was heading Hindustan Aeronautics as the Chief Executive Officer. So I am also representing the Bangalore BC Bhagalpur Association, Alumni Association, and I remember somebody mentioned that Bangalore Association is very active and we have very clear motto with us. We help the people to serve. Not only that, we have offered to conduct 1 hour class every week on the topics of the students, of the interest of the students. So anybody who wants any topic to be discussed by the experienced and the alumni, they are most welcome to contribute to the Bangalore Alumni Association and we will conduct the training session for them. So this offer is for all the current students and for the people who wish to join, find out a place, find out a way to how to
get something in their career, how they want to plan it, what they need to do that. Being very old, as you can see, I'm grey haired and all that. Let me correct some few facts here. Pardon me for doing that. Bihar had 5 engineering colleges, not 3. Sindri, Muzaffarpur, Patna, Bhagalpur, and Jamshedpur. When we joined, let me complete that. When we joined, I had a chance to join. I did my interview, it was in DC. Then I went and joined RIT Jamshedpur as a partner because it was 50-50. There was 50 seat into the Bihar quota and 50 was from the other quota. So we joined that way. Then we came back to DC Bhagalpur because it was much more. That is number one. That is first thing. And the second fact is that DC Bhagalpur has got so many associations, HL being one of them, as somebody was saying. We had a selection of 24 people all over India, we being one of them. And there were so many IIT students with me. But somehow, with the background of the DC Bhagalpur and the technical knowledge which I got it from there, I could see that those IITs were good match for us. Being all of those 24 people selected all over India, I was only selected for getting the missile. So that was the honor which was given to BC Bhagalpur, not to me. So I still say that BC Bhagalpur has got a lot of potential. At the same time, I urge the new version of BC Bhagalpur to really focus on certain things which are not only question but that will make sure please focus on the things which will require much more than what you need in that case. Please focus on that. हम चाहते हैं कि फैमिली का भी डेजिग्नेशन यहाँ पर हो उनके लोगों के साथ में, तो आइए प्लीज। कि हम लोग नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई किए हैं और आने वाले 2-3 महीनों में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से और हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर शिवरंजन सर है उनकी टीम, तो मई तक हम लोगों को नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन मिल जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। जैसे ही मिल जाएगा आपको भी देंगे हम लोग। और बहुत पुराना कॉलेज है, अभी कोई पत्रकारों ने लिखा था कि इतने वर्षों से नहीं मिला है। हम अब कहना चाहते हैं कि अब हमारे बुजुर्ग हमारे साथ में हैं, हम लोग एक्रेडिटेशन मिल जाएंगे। थैंक यू। उसको देखा उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर बनी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको राधे पीर लगी हमने देखा एक सपना सब इसके नाम अपना छोड़ आया लेकिन छोड़ आया सबके दिल छोड़